Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 4 Pianist Mutton of our English literature book as semester. In our last video, our topic was summary of 5th number stanza of this chapter 4 Pianist Mutton, and our next topic was exercise A. Mark these statements as duty of all 7 page number 42 of this chapter 4 Pianist Mutton. So students, we have read and explained summary of the 5th number stanza of this chapter for Pianist Mutton, and we have also read and solved exercise A of this chapter for Pianist Mutton. Exercise A, mark this statement as duty of all self. This is page number 42 in our English literature book as semester in our last video. And students, today's our topics are exercise B, answer these questions, and next exercise C, think and answer, which is also in page number 42 of this chapter for Pianist Mutton. Okay, so all students, please fast forward this class and listen to my words because today we are going to solve exercise B, answer this question, and exercise C, think and answer of this chapter for Pianist Mutton in our fair English literature notebook. Okay, so let's see exercise B and exercise C of this chapter 4. Firstly, we are going to solve exercise B, and after this we will solve exercise C of this chapter 4 in our fair English literature notebook. Okay, so let's see. Chapter number is chapter 4, and the name of this chapter 4 is Pianist Mutton. Pianist, it's in a person who plays piano, we call pianist. Okay, एक व्यक्ति जो पियानो प्ले करता है, पियानो बजाता है, उसे बोलते हैं पियानिस्ट. मटन इट्स अ पर्सन हु प्लेज द पियानो. एक पर्सन का नेम है, इट्स अ पर्सन नेम. ओके, एक व्यक्ति का नेम है जो पियानो प्ले करता है. तो स्टूडेंट्स, पियानिस्ट मटन, इट्स मीन पियानो प्ले करने वाला मटन. इट्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर 4. लेट्स एक्सरसाइज बी. जो एक्सरसाइज बी इज आंसर दीज क्वेश्चंस. आंसर मीन्स उत्तर दीजिए. These means in questions means प्रश्नों के आंसर. दिस क्वेश्चन इट्स इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. The first number question is who is Mutton Fizzov? When did he start to play the piano? Okay, तो who is Mutton Fizzov? Who means कौन? It means है Mutton Fizzov. Mutton Fizzov it's the person. Okay, who is Mutton Fizzov? It's mean Mutton Fizzov कौन है? When means कब? Did it's a past indefinite tense helping verb. He means उन्होंने start में शुरू किया. To play means बजाना the piano. Okay, piano is the musical instrument. एक संगीत वाद्य यंत्र. Okay. So students, your first number question is who is Mutton Fizzov? Mutton Fizzov कौन है? When did he start to play the piano? उन्होंने पियानो प्ले करना कब शुरू किया? Okay, let's see first number answer of this question number first. Your first number answer is Mutton Fizzov is an Israeli pianist. Okay, Mutton Fizzov it's the person name. Okay, it means है and means एक Israeli. It means he belongs to Israel. Israel से belong करते हैं, इसके लिए Israeli बोला गया. Okay, तो Israeli pianist it's mean a person who play piano we call pianist. Okay, तो pianist it's mean होता है संगीत वादक. Okay, तो students, Mutton Fizzov is an Israeli pianist. Okay, it's mean कि Mutton Fizzov एक इजरायली संगीत वादक है. Okay, तो Mutton Fizzov एक इजरायली संगीत वादक है. Okay, he started to play the piano at the age of 13. He means उन्होंने started में शुरू कर दिया. Started is the second form of start. Start में शुरू करना, started में शुरू कर दिया. To play means बजाना. The piano it's mean piano. Okay, at the age of 13 it's mean 13 की एज में, 13 साल की उम्र में. Okay, so your first answer is Mutton Fizzov is an Israeli pianist. He started to play the piano at the age of 13. Mutton Fizzov एक इजरायली पियानिस्ट है. एक Mutton Fizzov एक इजरायली पियानो वादक है. ओके, पियानिस्ट मीन्स पियानो वादक. तो Mutton Fizzov एक इजरायली पियानो वादक है. उन्होंने 13 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट इज सेकंड नंबर क्वेश्चन. योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज हु हैव मेंटर्ड मटन इन मास्टरिंग द पियानो. ओके, हु मीन्स किसने, हैव इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब in plural form. Mentored, mentored, here the meaning of mentored, they advised. Okay, सलाह दी मटन in the in mastering. Okay, here the meaning of mastering that महारत हासिल करना. Okay, किसी वर्क में या किसी एक्टिविटी में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी एक्टिविटी में बिल्कुल परफेक्ट होना, इसे बोलते हैं मास्टरिंग. ओके, महारत हासिल करना दी पियानो. ओके, तो स्टूडेंट्स, योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज हु हैव मेंटर्ड मटन इन मास्टरिंग दी पियानो. इट्स मीन कि मटन को पियानो में महारत हासिल करने के लिए किसने सलाह दी है. ओके, सो स्टूडेंट, लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज हु हैव मेंटर्ड मटन इन मास्टरिंग दी पियानो. इट्स मीन कि मटन को पियानो में महारत हासिल करने की सलाह किसने दी है. ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर आंसर. योर सेकंड नंबर आंसर इज मिसेस ईवा मल्किन एंड जोनाथन जैक हैव मेंटर्ड मटन इन मास्टरिंग दी पियानो. इट्स मीन कि मिसेस इट्स मीन श्रीमती, ईवा मल्किन एंड मिस और जोनाथन जैक. ओके, हैव मेंटर्ड. मेंटर इट्स मीन महारत हासिल करना. ओके, सो मटन इन मास्टरिंग दी पियानो. ओके, सो मिसेस इट मीन श्रीमती ईवा मल्किन और जोनाथन जक ने. ओके, मिसेस ईवा मल्किन और जोनाथन जक ने
मटन को पियानो में महारत हासिल करने की ये सलाह दी। ओके, श्रीमती ईवा मल्किन और जोनाथन जक ने मटन को पियानो में महारत हासिल करने की सलाह दी है। ओके, so let's see third number question of this exercise B. Your third number question is what is a piano recital? Okay, what is a piano recital? It's a third number question. What means kya? It means है A means एक piano is piano. Okay, recital here RECITAL recital. Okay, so what is a piano recital? Recital means students वादन. Okay, so what is a piano recital? It means एक piano वादन क्या है? Okay, एक पियानो वादन क्या है? What is a piano recital? So students, your third number answer is a piano recital is a performance given by just one or two musicians. Okay, a piano it means एक piano, recital it means वादन. A piano recital it means एक piano वादन. It means है एक means एक. Okay, A means एक performance. Here the meaning of performance that प्रदर्शन. Okay, गिवन मीन्स दिया हुआ, बाय मीन्स द्वारा, जस्ट मीन्स सिर्फ, वन मीन्स एक, और मीन्स अथवा या. ओके, टू मीन्स दो, म्यूजिशियन यह द मीन ऑफ म्यूजिशियंस दैट संगीतकारों. ओके, so students, your third number answer is a piano recital is a performance given by just one or two musician. It means एक पियानो वादन सिर्फ एक या दो संगीतकारों द्वारा दिया गया प्रदर्शन. ओके, सो एक जो पियानो रिसाइटल होता है, जो पियानो वादन होता है, वो सिर्फ एक या दो संगीतकारों के द्वारा दिया गया प्रदर्शन होता है. ओके, तो एक पियानो वादन सिर्फ एक या दो संगीतकारों द्वारा दिया गया प्रदर्शन है. ओके, सो लेट्स सी 4 number question. 4 number question is name any two classical musician mentioned in this chapter. Okay, name means नाम लिखिए, any means कोई, two means दो, classical here the meaning of classical musician it's mean कि शास्त्रीय संगीतकारों. ओके, सो क्लासिकल मीन्स होते हैं शास्त्रीय एंड म्यूजिशियंस इट्स मीन हो गया संगीतकार. ओके, मेंशन इट्स मीन उल्लेख किया गया है जिनका. ओके, इन दिस चैप्टर इस पार्ट में. ओके, इस अध्याय में, चैप्टर मीन्स होते हैं पाठ या अध्याय. ओके, सो स्टूडेंट्स, 4 number question is name any two classical musicians mentioned in this chapter. ओके, इट्स मीन इस अध्याय में, इस पाठ में उल्लेखित किए गए किन्हीं दो शास्त्रीय संगीतकारों के नाम बताइए. ओके, सो स्टूडेंट्स, 4 number answer is two classical musicians mentioned in this chapter are Johansson Sebastian Bach and Frederick Chopin. Okay, so two classical musicians. Okay, it's mean दो शास्त्रीय संगीतकारों. मेंशन में उल्लेखित किए गए. इन दिस चैप्टर में, इस पार्ट में, इस अध्याय में आर में से जोहेनेस सेबेस्टियन बैच एंड फ्रेडरिक चॉपिन. ओके, सो इट्स मीन कि इस पाठ में, इस अध्याय में उल्लेखित किए गए दो शास्त्रीय संगीतकार. ओके, दो शास्त्रीय संगीतकार है जोहेनेस. ओके, जोहेनेस सेबेस्टियन बैच एंड फ्रेडरिक चॉपिन. ओके, तो जो शास्त्रीय संगीतकार है जिनका उल्लेख, जिनको मेंशन किया गया है इस चैप्टर में, वो है जोहेनेस. ओके, जोहेनेस सेबेस्टियन बैच एंड फ्रेडरिक चैपियन. ओके, सो दो शास्त्रीय संगीतकार जिनका उल्लेख हमारे पाठ में किया गया है, उनका नाम है जोहेनेस Sebastian Bach and second है Frederick Chopin. Okay, let's see 5th number question. The 5th number question is where has Merton traveled to and performed. Okay, where means कहाँ, had it's a present perfect tense helping verb in singular form. Okay, and Merton traveled, here the meaning of travel get यात्रा की. Okay, travel means यात्रा करना, traveled means यात्रा की, travel to means यात्रा की, and means of performed, here the meaning of performed that प्रदर्शन किया. Okay, so 5th number question is where has Merton traveled to and performed. It's mean मटन ने कहाँ की यात्रा की और प्रदर्शन किया. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर 5th number answer is मटन हैज़ ट्रैवल्ड टू मटन हैज़ ट्रैवल्ड टू एंड परफॉर्म्ड इन दी फॉलोइंग कंट्रीज. ओके, एंड लेट्स सी फॉलोइंग कंट्रीज. योर कंट्रीज आर एस्टोनिया, स्पेन, ग्रीस एंड इंडिया. ओके, तो मटन हैज़ ट्रैवल्ड. ओके, मटन हैज़ ट्रैवल्ड टू, इट्स मीन मटन ने यात्रा की, एंड मीन्स और परफॉर्म, इट्स मीन प्रदर्शन किया. ओके, सो मटन हैज़ ट्रैवल्ड एंड टू, मटन हैज़ ट्रैवल्ड टू एंड परफॉर्म, इट्स मीन मटन ने यात्रा की और प्रदर्शन किया इन द फॉलोइंग कंट्रीज. ओके, इन मीन्स में, द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित कंट्रीज मीन्स देशों में. ओके, सो मटन हैज़ ट्रैवल्ड टू एंड परफॉर्म्ड इन दी फॉलोइंग कंट्री, इट्स मीन कि मटन ने यात्रा की और प्रदर्शन किया निम्नलिखित देशों में. मटन ने निम्नलिखित देशों में यात्रा की और प्रदर्शन किया. एंड दीज कंट्रीज आर एस्टोनिया, स्पेन, ग्रीस एंड इंडिया. ओके, इंडिया मीन्स भारत. ओके, सो स्टूडेंट्स, मटन हैज़ traveled to and performed in the following countries: Estonia, okay, Spain, Greece and India. It's mean मटन ने एस्टोनिया, स्पेन, ग्रीस और भारत, ओके, की यात्रा की और
प्रदर्शन किया. क्लियर. लेट्स सी 6 number question, which is the last question of this exercise B. So look clearly. Your 6 number question is, what did Mutton say about Indian classical music? Okay, what means क्या did it show past indefinite tense helping verb. Mutton से means कहते हैं या कहा. ओके, चूँकि टेंस पास्ट इंडिफिनिट हमारा टेंस है तो कहा. ओके, अबाउट मीन्स बारे में. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. ओके, इंडियन मीन्स भारतीय, क्लासिकल मीन्स शास्त्रीय, म्यूजिक मीन्स संगीत. ओके, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इट्स मीन भारतीय शास्त्रीय संगीत. ओके, व्हाट डिड मटन से अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? इट्स मीन मटन ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में क्या कहा? मटन ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में क्या कहा? ओके, सो स्टूडेंट्स, योर 6 number answer is, मटन said that Indian classical music is like magic and it has influenced many European composers. Okay, so Mutton said, Mutton ने कहा. said it's the second form of say means कहना, said means कहा. Okay, that means कि Indian classical music it's mean भारतीय शास्त्रीय संगीत, it means है. Okay, like magic it's mean जादू की तरह. Okay, and means और it has influenced, या द मीन ऑफ इन्फ्लुएंस दैट प्रभावित किया, इफेक्टेड किया. ओके, मैनी मीन्स बहुत से, यूरोपियन कंपोजर इट्स मीन यूरोपीय संगीतकारों को, हियर द मीन ऑफ कंपोजर दैट संगीतकारों को. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर 6 number आंसर इज, मटन सेड दैट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज लाइक मैजिक एंड इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी यूरोपियन कंपोजर्स. इट्स मीन मटन ने कहा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जादू की तरह है. ओके, लाइक मैजिक, और इसने कई यूरोपीय संगीतकारों को प्रभावित किया है. क्लियर. So students, we have completed this exercise B. We have solved all questions of this exercise B. Now we are going to solve exercise C of this chapter 4 in our Fair English Literature notebook. Okay, so let's see. Your first number question of this exercise C is, in today's world, music from any part of the world is accessible to us because of various technological developments. How have these developments helped musicians to showcase their music to the world? It's mean कि in today's world, आज की दुनिया में, okay, music from any part of the world is accessible to us because of various technological developments. It's mean आज की दुनिया में विभिन्न तकनीकी विकास के कारण दुनिया के किसी भी हिस्से से संगीत हमारे लिए सुलभ है. ओके, एक्सेसिबल है, हम बहुत ईजिली म्यूजिक को लिसन कर सकते. ओके, हाउ हैव दीज डेवलपमेंट्स हेल्प म्यूजिशियंस? इट्स मीन कि इन टू शोकेस दियर म्यूजिक टू दी वर्ल्ड. इट्स मीन कि इन विकासों ने संगीतकारों को अपना संगीत दुनिया को दिखाने में कैसे मदद की है. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट नंबर आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, there are many developments who help musicians to showcase their music to the world. Okay, these are radio, TV, mobile phone and recordings which enable the public to listen to music in the comfort in their own home. Okay, so there are many developments who help musicians to showcase their music to the world. It's mean ऐसे कई विकास है जिन्होंने संगीतकारों को अपने संगीत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने में मदद की है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, दीज आर, ये जो हमारे डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने हेल्प की है म्यूजिशियन की, वो है रेडियो. ओके, रेडियो है, टीवी है. टीवी इट्स द फुल फॉर्म ऑफ टीवी इज टेलीविज़न. ओके, एंड मोबाइल फ़ोन हो गया, एंड रिकॉर्डिंग्स हो गया. ओके, विच इनेबल द पब्लिक टू लिसन टू म्यूजिक इन कम्फर्ट इन देयर ओन होम. ओके, इट्स मीन ऐसे कई विकास है जिन्होंने संगीतकारों को अपने संगीत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने में मदद की है. और ये जो डेवलपमेंट्स है वो हैं रेडियो, टीवी, रिकॉर्डिंग, मोबाइल फ़ोन ने जनता को अपने घर में आराम से संगीत सुनने में सक्षम बनाया. ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ईजिली म्यूज़िक को लिसन कर सकते हैं और इसका क्रेडिट जाता है हमारी टेक्निकल डेवलपमेंट को. ओके, हमारी जो टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से आज हम बहुत ईजिली म्यूज़िक को लिसन कर पाते हैं, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू. ओके, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू. Okay, let's see second number question of this exercise C, which is last question of this exercise C. Let's see, your second number question is, have you learned to play the piano or any other musical instrument? Okay, have you learned? Okay, क्या आप लर्न कर चुके हैं, क्या आप सीख चुके हैं? लर्न इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न. ओके, लर्न मीन्स सीखना, लर्न मीन्स सीख चुके. क्या आप सीख चुके? टू प्ले मीन्स बजाना, द पियानो मीन्स पियानो, और मीन्स अथवा एनी अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. हियर द मीन ऑफ एनी अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कोई अन्य संगीत वाद्यन. ओके, have you learned to play the piano or any other musical instrument? It's mean क्या आपने पियानो या कोई अन्य संगीत वाद्यन बजाना सीखा है? ओके, क्या आपने पियानो या कोई अन्य संगीत वाद्यन बजाना सीखा है? इफ़ नो, यदि नहीं, then has anyone in your family or among your
friends learn to play any instruments? Okay, it's mean कि यदि नहीं, okay, if not means यदि नहीं, then means तब, has anyone in your family, okay, तो क्या आपके परिवार में या आपके मित्रों में से किसी ने कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखा है? okay, अगर आपने नहीं सीखा तो आपके फैमिली में, आपके परिवार में या आपके किसी फ्रेंड ने कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखा है? okay, and let's see next. क्या सीखा है? कोई भी वाद्य यंत्र बजाना. डिस्क्राइब योर डियर एक्सपीरियंस वाइल लर्निंग, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसिंग टू प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके, इट्स मीन कि डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करिए. ओके, सो संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए सीखने, प्रशिक्षण देने और अभ्यास करने का वर्णन करिए. इट्स मीन क्या स्टूडेंट्स, द मीन ऑफ दिस इज सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज क्या आपने पियानो या कोई अन्य संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीखा है? यदि नहीं तो क्या आपके परिवार में या आपके मित्रों में से किसी ने कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखा है? संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए सीखने, परीक्षण देने और अभ्यास करने के दौरान अपने अनुभवों का वर्णन करिए. ओके, आपको अपने अनुभवों का वर्णन करना है. ओके, अपने एक्सपीरियंस को आपको यहाँ पे शेयर करना है. ओके, उसका वो डिस्क्राइब करना है. क्लियर? सो लेट्स सी second number question, second number answer of this second number question, which is last answer of this exercise C. Okay, let's see. Your second number answer is yes, I have learned to play a piano. कि yes means हाँ, I have learned, मैं सीख चुकी हूँ, to play a piano, एक पियानो बजाना. ओके, yes I have learned to play a piano. ओके, कि हाँ मैं एक पियानो बजाना सीख चुकी हूँ. एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा संगीत वाद्य है जो मैंने लर्न किया है प्ले करना. ओके, तो yes I have learned to play a piano, हाँ मैं पियानो बजाना सीख चुकी हूँ. ओके, इट्स रियली वेरी गुड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके, ये सच में एक बहुत अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सच में बहुत अच्छा संगीत वाद्य यंत्र है. ओके, and I have learned to play it by myself. प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, myself मीन्स स्वयं की. ओके, तो मैंने इसे प्ले करना, मैंने पियानो को प्ले करना अपने खुद के अभ्यास से सीखा है. मैंने कहीं ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है, मैंने लर्न किया है पियानो को प्ले करना, बट अपनी सेल्फ प्रैक्टिस से. ओके, अपनी स्वयं की अभ्यास से. When I get very happy or sad, then I play piano and it helps me to forget my problems and sadness, and it gives me peace, happiness, and I feel very well to play it. It's like my friend. I really love it. Okay, तो when I get very happy, जब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, और मीन्स अथवा ओके या तो सैड, या मैं बहुत ज़्यादा जब हैप्पी होती हूँ, बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ, तब मैं पियानो को प्ले करती हूँ. ओके, देन आई प्ले पियानो, तब मैं पियानो प्ले करती हूँ, पियानो बजाती हूँ, एंड इट हेल्प मी टू फॉरगेट माई प्रॉब्लम्स एंड सैडनेस. और ये मेरी मदद करता है मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरी समस्याओं को और मेरी सैडनेस को, मेरे दुख को मुझे फॉरगेट करने में, भूलने में. ओके, एंड इट गिव्स मी पीस, और मुझे ये शांति देता है, हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है, एंड आई फील वेरी वेल, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील करती हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ टू प्ले इट, इसे बजाने पर. इट्स लाइक माई फ्रेंड, ये मेरी एक फ्रेंड की तरह है. ओके, एक मेरे दोस्त की तरह है. आई रियली लव इट, मैं सच में इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. ओके, सो स्टूडेंट्स, your second number answer is yes, I have learned to play a piano. It's really very good musical instrument. I have learned to play it by myself practice. When I get very happy or sad, then I play piano and it helps me to forget my problems and sadness, and it gives me peace, happiness, and I feel very well to play it. It's like my friend. I really love it. Okay, it's mean कि हाँ मैंने पियानो बजाना सीखा है और ये सच में बहुत अच्छा संगीत वाद्य यंत्र है, और मैंने इसे अपने स्वयं की अभ्यास से सीखा है. और जब मैं बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ, तब मैं पियानो प्ले करती हूँ, और ये मेरी हेल्प करता है मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरी समस्याओं को, मेरे दुख को मुझे फॉरगेट करने में, उसे भूलने में मेरी हेल्प करता है, मेरी सैडनेस और प्रॉब्लम से मुझे बाहर आने में मेरी हेल्प करता है. ओके, और ये मुझे शांति, खुशी देता है, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, बहुत वेल फील करती हूँ जब मैं पियानो प्ले करती हूँ, और ये एक मेरी फ्रेंड की तरह, मेरे दोस्त की तरह, और सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ओके, मैं सच में इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. सो स्टूडेंट्स, here I am writing this second number answer of this exercise C. Okay, by own language, अपनी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है कि हाँ मैंने सच में पियानो प्ले करना लर्न किया. ओके, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर राइट डाउन कर सकते हैं कि अगर आपने पियानो प्ले करना, या पियानो के इन प्लेस अगर आपने कोई अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लर्न किया है प्ले करना, तो आप यहाँ पे वो भी राइट डाउन कर सकते हैं. ओके, पियानो की जगह. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज सी, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज सी. यू हैव नो प्रॉब्लम इन एनी आंसर ऑफ दिस exercise C. Okay,
So students, we have completed exercise B and exercise C of this chapter 4, and I hope you must have understood both exercise of this chapter 4. You have no problem in any exercise, any question. Okay, so students, today's classwork is that note down exercise B, answer this question, and exercise C, think and answer of this chapter 4 Pianist Method in your Fair English Literature notebook. It's a today's classwork, and students, your homework is that learn exercise B and exercise C of this chapter 4 Pianist Method from your Fair English Literature notebook. It's a today's homework. So all students, complete your classwork. Note down exercise B, answer these questions, and exercise C, think and answer in your Fair English Literature notebook, and send me your work here. Thank you.